ऑल राइट, अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दी टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। किसके बारे में? अबॉर्शन के टाइप्स के बारे में। ऑल राइट, basically for your study descriptive point of view, abortion is divided into two common types. One usually called as spontaneous abortion, and the another one is the induced abortion. Spontaneous abortion and the induced abortion. The most common type of abortion is the spontaneous abortion. सबसे मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो कौन सा है? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। मैंने पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा सा इसके बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन? एनी अबॉर्शन विच अकर्स नेचुरली व्हेन द फीटस एक्सपल्ड नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के बेबी इज एक्सपल्ड आउट नेचुरली, इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। ऑलराइट, द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इटसेल्फ इट हैव सेवरल टाइप्स। इसके खुद के अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो लेट्स सी अबाउट दैट। Threatened abortion, inevitable abortion, threatened abortion, inevitable abortion, complete abortion, incomplete abortion, complete abortion, incomplete abortion, septic abortion, septic abortion, few names I am writing on the side. Next is the missed abortion, and the last very important, habitual abortion. You can call it a habitual abortion or recurrent abortion. Habitual abortion itself is called as recurrent abortion. All right, these are the different types of spontaneous abortion. The threatened abortion, inevitable abortion, complete and incomplete abortion, septic abortion, missed abortion. Missed abortion is also called as silent miscarriage or early fetal demise, and the last one is the habitual abortion. So guys, spontaneous abortion में भी most common type abortion कौन सा है? Incomplete abortion. So under the spontaneous abortion, the most common type of abortion is the incomplete type of abortion. Means if a female has 100 of female has undergone through the abortion, in that many of the female can have the incomplete abortion because it is quite often, it is very common. मतलब थोड़े बहुत conceptual product जरूर अंदर रह जाते हैं मदर के वूम के अंदर. So that is why it is called as incomplete abortion. चलिए इनके बारे में complete descriptive हम लोग study करेंगे. Another side, the induced abortion. Induced abortion means what? Guys, induced abortion का मतलब होता है whenever a pregnancy which is running naturally, जब कोई प्रेगनेंसी एकदम कंप्लीटली नेचुरली लाइक रन कर रही है, मीनवाइल सडनली लाइक द डॉक्टर्स हैज प्लान टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. सो then it is not a natural phenomenon. There are some interventions. They may give some drugs, or the mother undergoes some sort of like small clinical procedure, some surgery. That's why it is called as induced abortion. चलिए बात करते हैं गाइज. इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब ह्यूमन इंटरवेंशंस के द्वारा इसको इंड्यूस किया गया है डॉक्टर्स के द्वारा. नाउ इंड्यूस्ड अबॉर्शन इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज द लीगल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज MTP, and another one is the illegal. ऑल राइट, चलिए. सो इंड्यूस्ड अबॉर्शन में मैंने क्या बोला? फर्स्ट वन इज दी लीगल अबॉर्शन, और जिसका दूसरा नाम है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. गाइज, व्हेनेवर अबॉर्शन, जब भी कोई अबॉर्शन
टर्मिनेट किया जाता है विद द डॉक्टर्स परमिशन, अंडर दी लाइक क्लिनिकल गाइडलाइंस, अंडर द स्पेशल ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, जो प्लान्ड एसओपीज होती हैं उनके अंडर में, उनके फॉलोअप में अगर सपोज कीजिए कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है तो उसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बिफोर द ईयर ऑफ लाइक मैं ऐसा कह सकता हूं 1972 1972 द अबॉर्शन was not legalized, there was no proper constitution in the India. From the 1972 या उसके just बाद में Medical Termination of Pregnancy Act, this amendment was passed in the Parliament, it became legalized and then it was named as a MTP, Medical Termination of Pregnancy. So उसके बाद में 1972 के बाद में जब भी कोई प्रेगनेंसी है उसको अगर टर्मिनेट करना होता है, if we need to terminate that pregnancy, then the termination of pregnancy will be done under the MTP, Medical Termination of Pregnancy. उस केस में डॉक्टर्स की कंसेंट होती है, केस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस केस में हम इसको टर्मिनेट करेंगे। तो ये सब पूरे प्रोसीजर्स जब फॉलो होते हैं तो उसका नाम दिया जाता है लीगल अबॉर्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज द इलीगल अबॉर्शन। व्हेन द अबॉर्शन इज परफॉर्म्ड इन ए स्मॉल क्लिनिकल सेटअप, एक छोटे से सेटअप में परफॉर्म होता है विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स के ऑर्डर के होता है, या जिसके अंदर जो भी एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट फॉलो नहीं किया जाता, उसके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता, देन सच काइंड ऑफ अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इट इज कॉल्ड एज इलीगल अबॉर्शन। हम उसको क्या कहेंगे? इलीगल अबॉर्शन कहेंगे। और ऐसा माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द इलीगल अबॉर्शंस फ्यूचर में अपकमिंग 2 या 3 दिन बाद में या विद इन 1 वीक में दैट विल कन्वर्ट इनटू, वो चेंज हो जाता है किसमें? सेप्टिक अबॉर्शन के अंदर। सो मोस्ट ऑफ द इलीगल अबॉर्शन जो कि स्मॉल सेटअप में होते हैं, जहां पर प्रॉपर स्टरलाइजेशन फॉलो प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होते, इट विल कॉज दी सेप्टिक अबॉर्शन, मतलब इंफेक्शन। चलिए, तो ये कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन था किस चीज का? अबॉर्शन का। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड दी इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में मैंने आपसे डिस्कस किया रिगार्डिंग द थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट अबॉर्शन, then septic abortion, missed abortion and the recurrent abortion. चलिए, now what is our task? अब हम क्या करेंगे? We will study about one by one different types of the spontaneous abortions. Now let's see the threatened abortion. Threatened abortion. So, how will you define the threatened abortion? कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? देखिए, threatened abortion का मतलब, threatened word, what it means? Warning, you can say इंडिकेशन या लाइक थ्रेट, डराना। डिफरेंट नेम्स आप यहां पर यूज कर सकते हो। आपने नाम सुना होगा वार्निंग हेमरेज, यू मे हर्ड अबाउट दी वर्ड वार्निंग हेमरेज। मैंने पहले भी आपको ओब्स की क्लासेस में बताया है, हमें कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर वार्निंग हेमरेज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, इट शुड बी माइंडेड, उसके बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए, बिकॉज वार्निंग हेमरेज फ्यूचर में चल के क्या बन जाते हैं? वो एक कंप्लीट अबॉर्शन का काम कर जाते हैं। सो बेसिकली थ्रेटेंड का मतलब डरावना, समथिंग विच इज वार्निंग टू यू, विच इज अलार्मिंग टू यू, सो दैट इज कॉल्ड, इट इज थ्रेटेंड अबॉर्शन। सो थ्रेट, इंडिकेशन और वार्निंग हेमरेज, ये सारी चीजें किसके अंदर नाम, किसके नाम होते हैं? These all are something like synonym of threatened abortion. तो चलिए गाइस, हम शुरुआत करते हैं इसके बारे में। तो यहां पर क्या हुआ? ये अबॉर्शन हुआ नहीं है अभी तक। द अबॉर्शन इज नॉट हैपेंड येट, इट इज जस्ट गिविंग यू दी वार्निंग। ये आपको क्या कर रहा है? ये आपको थ्रेट कर रहा है, आपको डरा रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब, in such type of abortion, in such type of abortion, the process of
abortion is started, the process of abortion is started, but continuation of pregnancy is possible. So you can say like it's like a warning hemorrhage. So it's like a warning hemorrhage. So guys, what do you understand about this threatened abortion? तो सर हमें थ्रेटन अबॉर्शन के बारे में ये समझ में आया कि इसमें अबॉर्शन की प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाती है. द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन स्टार्टेड बिकॉज आई मेंशन हियर शी इज हैविंग ए वार्निंग हेमरेज, शी हैड ए स्लाइट ब्लीडिंग. अबॉर्शन में क्या होता है? द फीमेल विल अंडरगो द ब्लीडिंग, like slight bleeding or heavy bleeding, any kind of bleeding, any amount of bleeding. So here the female is having the bleeding, which means definitely like आप ऐसा समझ सकते हो इसको, like here there is a implantation, there is a conceptual product or something else. So from this area or either this area the bleeding has started. bleeding यहाँ से start हुआ, bleeding has expelled out, but वो bleeding इतना heavy नहीं था, bleeding was not that severe कि अब हम इस प्रेगनेंसी के कुछ नहीं कर सकते. we cannot do anything in this pregnancy. means what? हम इस प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं. we can protect this pregnancy, we can continue this pregnancy. बस यही तो मैंने लिखा है. this type of abortion, the process of abortion is started. देखिए ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ, बट द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल. अब यहां पर क्लिनिकल इंटरवेंशन की बहुत जरूरत होती है. मदर रिक्वायर्ड दी ऑब्जर्वेशन, मदर सीरियसली सी रिक्वायर्ड दी ट्रीटमेंट. अगर उस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले विद इन 1 और 2 वीक में वो अबॉर्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. मतलब अबॉर्शन कंप्लीट में चेंज हो जाएगा, बेबी डेफिनेटली टर्मिनेट हो जाएगा. लेट्स सी नाउ. तो मैंने क्या नाम दिया? इट इज लाइक ए वार्निंग हेमरेज. मैंने आपको कहा था ना शुरुआत में, आई टोल्ड यू अर्लियर वी शुड नॉट इग्नोर, हमें इग्नोर नहीं करना है. किस चीज को? वार्निंग हेमरेज को. वी शुड नॉट इग्नोर दी वार्निंग हेमरेज. चलिए बात करते हैं अब थ्रेटन अबॉर्शन के बारे में. चलिए थ्रेटन अबॉर्शन क्यों हो सकता है? हाउ द थ्रेटन अबॉर्शन कैन अकर? मे बी बिकॉज ऑफ एनी सडन एक्सटर्नल प्रेशर, because of any sudden external pressure, because of any trauma, because of any trauma, because of abnormal sleeping habits, like sometimes the few of the female who is first time undergoing the pregnancy, she don't have any previous experience of pregnancy, and few females they have a habit of lying down in the prone position, lying down in the prone position. So those abnormal sleeping habits and some sort of trauma, like the mother is driving and suddenly she has applied the brake, so because of the steering or because of heavy pressure of the seat belt, she may have the trauma over the abdominal area or over the uterine areas, and she had a bleeding, spotting, or I said like sudden external pressure. Or we can like these are the basically like different common reasons, common कारण होते हैं जिनके कारण फीमेल को क्या हो सकता है? थ्रेटन्ड अबॉर्शन हो सकते हैं. नाउ इस थ्रेटन्ड अबॉर्शन को हम कैसे मैनेज करेंगे? हाउ टू मैनेज दी थ्रेटन्ड अबॉर्शन, ये टास्क अब हमारे पास रहता है. सो थ्रेटन्ड अबॉर्शन का हमने मीनिंग पढ़ा, हमारे को माइंड में क्लियर हो गया कि बात किस चीज की हम कर रहे हैं. प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सकती है अगर हमने पूरे एफर्ट्स या ऑब्जर्वेशन मदर को किया. तो हो क्यों रहा है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया. लेट्स सी द मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द थ्रेटन्ड अबॉर्शन. ओके, थ्रेटन्ड अबॉर्शन में हमें यह याद रखना है कि FHR विल बी प्रेजेंट, फीटल हार्ट रेट या फीटल हार्ट साउंड जो होता है वो प्रेजेंट रहता है. सर्वाइकल इंटरनल ओवस
जो सर्विक्स का इंटरनल ओवस है, ओपनिंग है, वो क्लोज रहती है। फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिए, मतलब बेबी अभी अलाइव है, अलाइव बेबी है, बेबी की डेथ नहीं हुई है। इंटरनल ओवस, जो सर्वाइकल ओवस है, वो अभी भी क्लोज है, इट्स नॉट ओपन। ओपन का मतलब अगर ओपन होता तो डेफिनेटली वहां पर बेबी एक्सपल्ड आउट कंडीशन में होता। 2 पॉइंट। नेक्स्ट, मदर इज हैविंग स्लाइट ब्लीडिंग, जिसको आप स्पॉटिंग्स कह सकते हो। मदर इज हैविंग स्लाइट ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, मतलब इट्स नॉट ए हैवी ब्लीडिंग, मस्ट रिमेंबर दिस वन, स्लाइट ब्लीडिंग, शी इज नॉट हैविंग द हैवी ब्लीडिंग। ऑलराइट, बिकॉज मैंने बोला ना अभी शुरुआत हुआ है, जस्ट स्टार्टेड। नाउ नेक्स्ट इज दी वेरी मिनिमम pain. She may have the abdominal pain, but it is very dull nature pain or very minimum pain. All right, ये कुछ conditions होंगी, like ये कुछ clinical features होंगे किसके regarding? Threatened abortions के regarding. तो threatened abortion में हमें क्या indicator मिला? डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि it is just a threatened abortion? डॉक्टर ने मदर ने कंप्लेन किया कि उसको हल्का ब्लीडिंग था, स्पॉटिंग्स था। मदर विल टेल दैट she is having very minimum pain. When the mother reached to the hospital, she provided these two history. On examination, the fetal heart sound was present and the bleeding was really very minimum. And on clinical examination, on PV, per vaginal examination, the internal ovus was found closed. उसको वो बंद मिला। तो डॉक्टर को कंफर्म हो गया कि अभी अबॉर्शन के बारे में, अबॉर्शन की जो प्रोसेस है वो जस्ट स्टार्ट हुई थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ था, उसकी वजह से थोड़ा स्पॉटिंग हुआ। हम इस प्रेगनेंसी को थोड़ा अल्ट्रासाउंड से वेरीफाई कर लेते हैं। दे विल डू, अब थ्रेटन अबॉर्शन में डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर विल डेफिनेटली गो फॉर दी अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी करेंगे और यूएसजी के बाद में कंफर्म करेंगे कि हाँ गेस्टेशनल सेक अपनी पोजीशन पे है, प्लेसेंटल पोजीशन इज नॉर्मल, देन दे विल कंटिन्यू दी प्रेगनेंसी। नाउ लेट्स सी दी मैनेजमेंट ऑफ दिस थ्रेटन अबॉर्शन। इस थ्रेटन अबॉर्शन के मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो व्हाट दे विल डू, सबसे पहला important point, provide maximum rest to the mother. मदर को आप क्या करोगे? You should provide the maximum rest to this mother. Next, reassurance to the mother. What is that one? Reassuring the mother. Reassurance to the mother. Sometime I have seen few of the cases, कुछ cases में मैंने देखा भी है कि what are the conditions. Sometimes the doctors they may provide, sometime like if it is a first pregnancy, the primary gravida, if the mother is not highly experienced, I told you the mother may have the grave concern regarding this pregnancy. So what they will do, the doctor the mother may have the mental stress or mental trauma. In that case the doctor may provide the diazepam. All right, just to have a good sound sleep for around 1 week, yeah, 3 to 4 days, to have a proper sleep to the mother, because if the mother is, suppose if she is having insomnia or highly restless because of the word abortion, she may have a continuation of bleeding and she may have a complete abortion. So to control that, to control the mental stress or trauma, the doctor may give the diazepam, low dose of diazepam at the night. Next one, इसके अलावा ये तो हो गए डॉक्टर्स की तरफ से मैनेजमेंट कि वो क्या करेंगे। नाउ व्हेन द मदर इज गेटिंग डिस्चार्ज, व्हाट आर द डिफरेंट एडवाइस यू विल प्रोवाइड टू द मदर। मदर को आप क्या एडवाइस दोगे एज ए नर्स? सो हमारी तरफ से एडवाइस होंगी, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही हाईली हेल्थ कॉन्शियस मदर होती हैं जो कि फिटनेस में बिलीव करती हैं, ऐसी मदर्स को आपको डेफिनेटली एडवाइस देनी है, अवॉइड हैवी एक्सरसाइज, avoid heavy exercise and avoid coitus. They should avoid the coitus. So to protect this baby, to protect this pregnancy, we should advise the mother, she should avoid the coitus. We should advise the couples, then advise the mother to avoid heavy exercises. We will reassure the mother, we will provide the counseling to the mother. If she is highly restless, we may give the low dose of diazepam.
दैट्स ऑल. दीज आर द डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल. एंड एक और चीज डेफिनेटली आपको मदर को एडवाइस करना है. एडवाइस द मदर to preserve the vulval pads. If the bleeding occurs in the future, in the upcoming times, if the bleeding persists again and again, if she is having the bleeding, she should preserve the vulval pads, because by the consistency, by the amount of vulval pads, like how much it is weight, what is the length of that vulval pad which is weight, उसी से डॉक्टर कंफर्म करेगा कि कितना हैवी ब्लीडिंग था. मदर को कैसे पता चलेगा? सी कैनॉट एबल टू मेजर दैट अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग. इट इज 100 ml, 200 or 300 or 500 ml. So she should, what she has to do, she has to preserve the vulval pads. So that's all. These are the different advice a doctor or a nurse should provide to the patient before discharging any of the threatened abortion patient. So guys, ये हमारा एक टाइप सबसे पहले तो पॉइंट था रिगार्डिंग द थ्रेटेंड अबॉर्शन, वो कंप्लीट हुआ. We have discussed regarding the definition of threatened abortion. क्या होता है, क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है. We have also discussed regarding the clinical features. Whenever a mother comes to the hospital with the complaint of slight bleeding when she is pregnant, then the doctor will see the fetal heart sound. The doctor will perform the ultrasonography, placental position, amount of bleeding, internal OS कैसा है, it is closed or it is opened. Next, it is a heavy bleeding or it is a slight bleeding. So in the case of threatened abortion, it will be a, ये कैसा bleeding होगा, slight bleeding होगा. And she may have a dull nature pain, very minimum nature pain in the lower abdomen. Next is, चलिए अब हम बात करेंगे regarding the inevitable abortion. Inevitable abortion means what? अब हमारा जो सेकंड टाइप था, threatened abortion को हमने अच्छे से मैनेज किया, प्रेगनेंसी को प्रॉपरली ऑब्जर्व किया, fetal heart sound कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया, द प्रेगनेंसी वाज कंटिन्यू अप टू द 9th month. अब हमारा सेकंड जो टाइप है अबॉर्शन का वो स्टार्ट होगा, दैट इज द इनएविटेबल अबॉर्शन. चलिए इसके बारे में बात करते हैं. सो जनरली इन योर एग्जाम आपकी एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन टाइप्स के बारे में. ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन, इन which type of abortion the pregnancy can be continued. So what will be your answer? My question, my point will be like complete abortion, incomplete abortion, inevitable abortion or threatened abortion. So your right answer will be threatened abortion. So threatened abortion we can continue the pregnancy. All right. चलिए अब क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इनएविटेबल अबॉर्शन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस अबॉर्शन? एक चीज आपको यहां पर क्लियर करनी है, एक स्मॉल ट्रिक, दैट इज like threatened abortion and inevitable abortion, they are just vice versa, they are just opposite to the each other. जैसे मैंने threatened abortion में आपको बताया था, I told you that कि threatened abortion के अंदर हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं. It is just like a warning hemorrhage, ये एक वार्निंग हेमरेज की तरह होता है. बट here just opposite. Inevitable abortion के अंदर mother is having the abortion, the process of abortion is started, she is having the bleeding, she is having a very severe nature of pain, and that pregnancy you cannot able to protect. आप उस प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. You have to say to the mother, I am sorry, because the reason is that pregnancy एक ऐसी स्टेज में पहुंच गया है, वहां से आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते. So it's a very crucial type of abortion for the mother. चलिए बात करते हैं इसके बारे में. In this type of abortion, the process of abortion is started and reached to a point from where continuation of pregnancy is not possible. That's all. So जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेम डेफिनेशन ओवर हियर. इन दिस टाइप ऑफ अबॉर्शन द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन इज स्टार्टेड, मतलब अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया एंड रीच पहुंच गया है कौन से पॉइंट पे? रीच टू ए पॉइंट फ्रॉम वेयर
continuation of pregnancy is not possible. This is the most important line. Continuation of pregnancy is not possible. So यहां पर क्या होगा? This abortion we must has to end up. इस प्रेगनेंसी को हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें एंड अप करना पड़ेगा. We have to clean out, we have to wash out the uterine area, the womb, because जो प्रोडक्ट है वो कंसेप्टस या अबोर्टस ऐसे स्टेज में आ गया है कि वहां से आप इसको डिसकंटिन्यू ही कर सकते हो, कंटिन्यू वर्ड यूज नहीं कर सकते. चलिए बात करते हैं इसमें ऐसा क्या होता है. फाइन. देखिए हो सकता है वेरी हाई पॉसिबिलिटीज दैट कि हमने वार्निंग हेमरेज के बारे में पढ़ा था. वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग द थ्रेटन्ड अबॉर्शन. देयर आई टोल्ड यू दैट द मदर नीड ए क्लोज ऑब्जर्वेशन. मदर नीड टू कंट्रोल द एक्सरसाइज. दे हैज टू द कपल्स हैज टू स्टॉप द कोइटस एंड FHS fetal heart sound need to be monitored. What happened? Mother reached to the hospital very late. Oral possibility like if the mother has not taken care of properly, she has done the heavy exercises, she did not took the rest properly, she was little bit poor and she has to go for work, so she couldn't able to take the rest. What happened? इस uterine segment से over the implanted site या over the placental areas, so what happens? इस area से जो bleeding start हुई थी वो यहाँ पर heal ना होके, scar ना बन के, healing ना होके, the bleeding was keep on continuing. If the bleeding was keep on continue, what happens? This area start to detach. ये एरिया अपनी जगह छोड़ने लग जाता है. Otherwise, this fetus, if it is not getting proper amount of nutrients or oxygen, अगर इस fetus को proper nutrient या oxygen नहीं मिल रहे हैं, रीजन क्या था? वहां से maternal एरिया से क्या हो रहा है? इम्प्लांटेड एरिया से ब्लीडिंग हो रही है. तो डेफिनेटली फीटस का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा एंड द फीटस विल बी डेड. फीटस क्या हो गया? डेड हो गया. तो अब मैंने आपको क्या बोला? जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है वो ऐसी स्टेज में पहुंच गया है जहां से आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते. यू कैनॉट एबल टू कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी बिकॉज द ब्लीडिंग वाज कीप ऑन कंटिन्यूइंग. ब्लीडिंग जो था वो प्लेसेंटल एरिया से कंटिन्यू था. दूसरा क्या था? फीटस वाज नॉट गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ गैसेस, मतलब अपना जो पार्ट था ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई नहीं मिल रहा था एंड फीटस इज नाउ नो मोर. फीटस इज डेड. दैट्स ऑल. तो ये क्या लीड कर गया? दिस इज फाइनली लेड टू द इनएविटेबल अबॉर्शन. रीजन क्या था? रीजन वही था improper care by the mother या improper observation of the mother when the mother was just started to have the warning hemorrhage. तो threatened abortion को अगर आपने माइंड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, what will happen? It will lead to the inevitable abortion. All right. अब देखते हैं कि इनएविटेबल अबॉर्शन में मदर की क्या कंप्लेंट्स रहेंगी. ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर को क्या मिलेगा, इन चीजों के बारे में बात करते हैं. सो फीटल हार्ट साउंड, ऑब्वियसली कोई भी प्रेग्नेंट मदर सपोज कीजिए डॉक्टर के पास जाएगा, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर के ऑनवर्ड्स, तो वहां पर डॉक्टर डेफिनेटली वहां पर क्या चेक करेगा? फीटल हार्ट साउंड. एंड फीटल हार्ट साउंड इस कंडीशन में कैसा रहेगा? इट विल बी एब्सेंट. सो फीटल हार्ट साउंड कैसा था? एब्सेंट था. सेकेंड पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी मैं आपको लिखने जा रहा हूं. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनल ओवस, जो सर्वाइकल ओवस था, इट इज ओपन नाउ. इंटरनल ओवस इज ओपन्ड. नेक्स्ट वन. नाउ लेट्स सी द नेचर ऑफ ब्लीडिंग. ब्लीडिंग कैसा था? इट इज ए हैवी ब्लीडिंग. तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो किस चीज को? थ्रेटन्ड अबॉर्शन को और इनएविटेबल अबॉर्शन को. सो देयर इज ए हैवी पर वेजाइनल ब्लीडिंग, सीवियर कॉलिक की नेचर, पेन. व्हाट इज हैपनिंग? वहां पे थ्रेटन अबॉर्शन में क्या बोला था मैंने आपको? इन थ्रेटन अबॉर्शन आई टोल्ड यू दैट द नेचर ऑफ पेन इज स्लाइट या इट इज डल पेन. हियर द पेन इज सीवियर. इट इज अ वेरी सीवियर पेन. ब्लीडिंग यहां पर हेवी हो रहा है, वहां पर ब्लीडिंग कैसा था? स्लाइट ब्लीडिंग था. सो इन द इनएविटेबल अबॉर्शन देयर इज अ हेवी ब्लीडिंग, severe colic in nature pain, and the internal ovus is opened. In threatened abortion I told that internal ovus is closed. Here it is opened. Please remember, हमेशा ध्यान रखिए
wherever in the type of abortion में जहां कहीं पर भी आपको internal ovus open मिलेगा, wherever you will get the word open, it means that pregnancy is terminated, that pregnancy is definitely terminated. और आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि वो pregnancy अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन, एंड द फीटल हार्ट साउंड कैसा है? एब्सेंट है. जब फीटस को ब्लड नहीं मिलेगा मतलब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी, और इफ द फीटस इज नॉट गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स, क्या होगा? फीटस विल बी डेड. इफ द फीटस इज डेड, नो कार्डियक एक्टिविटी, फीटल हार्ट साउंड विल बी एब्सेंट. ऑलराइट, सो इट्स अ वेरी लाइक ड्रास्टिक कंडीशन, या हम ऐसा कह सकते हैं वेरी क्रूशियल कंडीशन फॉर द मदर. ऑलराइट गाइस, नाउ दीज आर द बेसिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग द इनएविटेबल अबॉर्शन. अब हमें ये पॉइंट है कि क्या डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन करने पड़ेंगे. यहाँ पे एक तो मदर का परवेजनल एग्जामिनेशन होता है, एक मदर का क्या करेंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी. दे विल परफॉर्म दी अल्ट्रासाउंड. चलिए, अब यहाँ पे डिस्कस हमारा ये हुआ पॉइंट की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कंडीशन में है, अब इस प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते. देखिए, जब फीटस यूट्रस के अंदर डेड है, मदर के वुम्ब में फीटस डेड है, एब्सेंट है फीटल हार्ट साउंड, क्या आपको इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहिए? नो, डेफिनेटली यू शुड नॉट कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी बिकॉज नाउ इट इज ए इन्फेक्शियस स्टेज. अगर आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करोगे, इट विल लीड टू सेप्सिस, मदर में गो इनटू द सेप्टिक शॉक. तो हमें इस प्रेगनेंसी को इमीडिएटली टर्मिनेट करना होगा बिकॉज द फीटस इज डेड. तो क्या करोगे आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करके? सो योर आइडियाज गोज टू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. यू हैव टू रिमूव आउट दिस कंसेप्चुअल प्रोडक्ट. तो अब हमारा स्टार्ट होता है मैनेजमेंट. नाउ आवर टास्क इज स्टार्टेड. व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन? गाइज, यहां पे मैनेजमेंट कुछ नहीं होगा, आपका एक ही टारगेट होगा, यू हैव टू रिमूव आउट द कंसेप्चुअल प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट अंदर था यूट्रस के, उस प्रोडक्ट को हमें एक्सपेल्ड आउट करना है. ऑलराइट, क्यों एक्सपेल्ड आउट करना है? अगर वो प्रोडक्ट एक्सपेल्ड आउट, दो टाइप हो सकते हैं यहां पे, याद रखना. इनएविटेबल अबॉर्शन को अगर आपने इतनी चीजें डायग्नोज कर ली, मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑब्स्टेट्रिक्स का ये बोलता है, यूजुअली 3 डेज के अंदर, विद इन 3 डेज द प्रोडक्ट विल बी नेचुरली एक्सपेल्ड आउट. प्रोडक्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा यूट्रस से. इफ इट इज नॉट एक्सपेल्ड आउट विद इन 2 to 3 days, द डॉक्टर विल एक्सपेल्ड आउट विद द क्लिनिकल इंटरवेंशन. तो हमें याद रखनी है. चलिए, हम बात करेंगे इस पॉइंट पे. तो हम मैनेजमेंट में ऐसा कह सकते हैं कि वी कैन वेट फॉर 2 to 3 days फॉर द नेचुरल एक्सपल्सन. एक तो ये काम कर सकते हैं हम लोग. यूजुअली आज के जमाने में इन दिस पॉइंट, इन दिस सिनेरियो, इन दिस जनरेशन, पीपल डोंट वेट फॉर दिस मच टाइम बिकॉज जो चीज एक्सपायर्ड है यूट्रस में नहीं है, व्हाट इज द पीपल आर लिटिल बिट सेल्फिश, आई कैन से. सो दे विल टेल द डॉक्टर दैट कुछ ऐसा दवाई दे दीजिए ताकि ये एक्सपेल्ड आउट जल्दी हो जाए. सो नाउ डॉक्टर्स रोल विल स्टार्ट. यहां पर डॉक्टर का कोई रोल नहीं था. नाउ व्हाट दे विल डू, प्लीज रिमेंबर, यहां पे आपको एक ये पॉइंट रिमेंबर रखना पड़ेगा, वीक्स. कौन सा वीक है प्रेगनेंसी का? बिफोर 12 वीक और आफ्टर 12 वीक. वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको यह चीज नोट करनी होगी कि पीरियड कौन सा है, प्रेगनेंसी का कौन सा पीरियड है, कौन सा ड्यूरेशन है. ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या सेकंड ट्राइमेस्टर है? इफ इट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर ये पहला ट्राइमेस्टर है, बिफोर 12 वीक है, तो आप इस प्रेगनेंसी को कैसे टर्मिनेट करोगे? हाउ विल यू रिमूव आउट दैट एक्सपल्सल प्रोडक्ट? इफ इट इज बिफोर 12 वीक, then go for dilatation and evacuation, D and E. You have to go for D and E, dilatation and evacuation. Very important, please must note down this one. If the pregnancy, you are ending up the pregnancy, inevitable abortion before 12 weeks, the preferred choice of the doctor is D&E, dilatation and evacuation. They will dilate the cervix with the Hagar dilators and then they will evacuate the
कंसेप्चुअल प्रोडक्ट, जो कंसेप्टस था, अबोर्टस था, उसको इवैक्यूएट करेंगे। दैट इज द बिफोर 12 वीक्स। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, इफ आफ्टर 12 वीक then mini labor is प्रिफर्ड चॉइस। तो 12 वीक के बाद में अगर सपोज कीजिए द प्रोडक्ट इज एक्सपेल्ड, द बेबी इज डेड इनसाइड द यूट्रस, देन द मिनी लेबर इज द प्रिफर्ड चॉइस फॉर द डॉक्टर। नाउ व्हाट इज द वर्ड ऑफ मिनी लेबर, हम इसके बारे में भी 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो 12 वीक के बाद में मिनी लेबर के पॉइंट पे हम चलेंगे, और 12 वीक से पहले है वी विल गो फॉर दी डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। चलिए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पे ये मिनी लेबर वर्ड का क्या मतलब है। यूजुअली आपने लेबर वर्ड का नाम डेफिनेटली सुना होगा। मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जहां पे पहले सर्विक्स डायलेट होता है, देन फीटस एक्सपेल्ड आउट होता है, उसके बाद प्लेसेंटा डिलीवरी होती है। तो क्या हुआ, सर्विक्स का डायलेशन हुआ, देन फीटस वाज एक्सपेल्ड आउट नेचुरली, देन प्लेसेंटा वाज डिलीवर्ड। सेम प्रोसेस, अगर वही प्रोसेस यहां पर फॉलो हो तो हम उसको क्या नाम बोलेंगे, मिनी लेबर। सो मिनी लेबर में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्रिप, with the help of oxytocin drip, we have to deliver fetus first। ऑक्सीटोसिन ड्रिप से आपको क्या करना होगा, we have to deliver the fetus first, then placenta, that's it। तो पहले आपने फीटस को डिलीवर किया, सेकंड आपने किसको डिलीवर किया, प्लेसेंटा को डिलीवर किया। सो दैट इज डेफिनेटली इट इज कॉल्ड एज ए मिनी लेबर। और आपने क्या चीज यूज किया, व्हाट ड्रग यू हैव यूज दी ऑक्सीटोसिन। तो आपने सिंटोसिन या सिंटो के नाम से जो ड्रग आता है, ऑक्सीटोसिन जो आता है, उसको आपने स्टार्ट किया, मदर को पेन हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हुए, और कॉन्ट्रैक्शंस के कारण से फीटस एक्सपेल्ड आउट एंड प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट। दैट्स कॉल्ड एज मिनी लेबर। ऑलराइट गाइस, sometimes in the first trimester, याद रखना डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन ये हमारा एक सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गया। समटाइम अगर आप ड्रग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट पर अगर आप फोकस करोगे, व्हाट वी हैव टू डू, द डॉक्टर में यूज और द मदर में प्रिफर्ड फॉर द मीजोप्रोस्ट्रोल, दे मे गो फॉर द मीजोप्रोस्ट्रोल। So misoprostol क्या है, misoprostol is nothing but like prostaglandin है, type of prostaglandin, a very famous prostaglandin। misoprostol में 200 माइक्रोग्राम, याद रखना प्लीज, यू मस्ट रिमेंबर 200 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम misoprostol you have to give। how much maximum doses, 4 doses per vagina, can be repeated in every 2 to 3 hours। like 1 tablet of misoprostol which is with the dose of 200 microgram is placed into the vagina as a suppository। once you kept in the vagina as a suppository, what happen, you can repeat the same misoprostol, same dose in every 2 to 3 hours, maximum of 4 doses। so कितना आपने maximum misoprostol दिया मदर को, 800 माइक्रोग्राम, that's all। same time मैंने यहां पर कहा था द मदर इज हैविंग सीवियर हैवी ब्लीडिंग, मदर को क्या हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है। तो सम टाइम द डॉक्टर मे गिव 2 ड्रग्स, आइदर दे मे गिव द मेथार्जिन 0.2 mg IM, दे मे गो फॉर IV ऑल्सो, देयर चॉइस, 0.2 milligram मेथार्जिन, एंड सम टाइम मेथार्जिन के बजाय कई बार हैवी ब्लीडिंग के केसेस में दे मे गिव दी लाइक सम अदर ड्रग्स, लाइक सम ऑफ द अदर फेमस ड्रग विच आई कैन से
What is that name? Yeah. Ergot derivatives. When the mother is like a heavy cardiac case or heart failure cases, in that case, instead of metharzine, the doctor may go for the ergot derivatives. So these drugs, why we are preferring for the mother? We are just providing to the mother to control the heavy bleeding. We are just providing it to what purpose? To control the bleeding. All right. So to expel out the product, जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपल्ड आउट करने के लिए कौन सा ड्रग हमने यूज किया? मीजोप्रोस्टोल. व्हाट वाज द डोज? 200 माइक्रोग्राम, which can be repeated up to the maximum of 4 doses, like 800 microgram. Definitely it will help to expel out the conceptual product. So guys, this was about the management of inevitable abortion. Inevitable abortion के मैनेजमेंट में हमने किन चीजों के बारे में डिस्कस किया? We have discussed that we may give the choice to the parents that naturally जो प्रोडक्ट डेड हो गया है फीटस मदर के यूट्रस में, नेचुरली इट विल बी एक्सपेल्ड आउट मैक्सिमम विद इन 3 days. 3 days में नेचुरली एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा. वी कैन वेट फॉर 2 to 3 days फॉर द नेचुरल एक्सपल्सन. अदरवाइज वी मे गो फॉर 2 methods. इफ द प्रोडक्ट इज बिफोर 12 week, we may go for dilatation and evacuation. If the product is after 12 week, we can go for the oxytocin drip, that is the mini labor. Now to control the bleeding, we can give the metharzine 0.2 mg, or you can give the ergot derivatives. Ergot derivatives means what? Ergot derivatives means ergometrin. So ergot derivatives और ergometrin both are same name. All right guys. So ये ऊपर वाली चीजें तो ड्रग्स मैंने आपको बताई, these are just given to control the bleeding because she is having heavy bleeding. That's all. I have seen some of the cases that the doctors also give the antibiotics like cefixime tablet for 3 days to avoid the chances of infection. Cefixime. That's all. So, dear students, till now we have discussed regarding the threatened abortion. We have gone for a complete brief discussion of threatened abortion. We also discussed regarding the inevitable abortion. Now, the third abortion, the very very important classification, that is the complete abortion. Very easy topic. So, इनएविटेबल अबॉर्शन में इंटरनल ओवस का क्या होगा? इट विल बी ओपन्ड. ब्लीडिंग का नेचर, इट विल बी हैवी ब्लीडिंग. व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ पेन? पेन विल बी वेरी सीवियर कोलिकी नेचर पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन. ऑल राइट. एंड व्हाट अबाउट द एफएचएस, फीटल हार्ट साउंड? इट इज एब्सेंट. व्हाट अबाउट द फीटस? फीटस इज डेड इनसाइड द मैटरनल वूम्ब. दैट्स ऑल. ये चीज आपको याद रखनी है किसके बारे में? इनएविटेबल अबॉर्शन के बारे में. अब चलिए नेक्स्ट, द थर्ड टाइप ऑफ अबॉर्शन, दैट इज द कंप्लीट अबॉर्शन. चलिए हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट अबॉर्शन के बारे में. सो एज पर द नेम इट सजेस्ट, कंप्लीट अबॉर्शन मीन्स व्हाट? कंप्लीट अबॉर्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन वाज स्टार्टेड. अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इट रीच टू ए पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन नॉट कंटिन्यू, एंड सेम टाइम द एंटायर प्रोडक्ट इज नेचुरली एक्सपेल्ड आउट. तो क्या हुआ? अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, देन फीटस और जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट था वो पूरा नेचुरली एक्सपेल्ड आउट हो गया. डॉक्टर को कोई इंटरवेंशन वहां पर मेडिकल टीम को नहीं करना पड़ा. जब मदर हॉस्पिटल में पहुंचा, व्हेन द मदर रीच टू द हॉस्पिटल, शी जस्ट प्रोवाइडेड ए स्मॉल हिस्ट्री. एक छोटा सा हिस्ट्री उसने दिया कि देयर वाज ए एक्सपल्सन ऑफ ए फ्लेशी मास. लास्ट नाइट क्या हुआ? एक फ्लेशी मास बाहर एक्सपेल्ड आउट हुआ था वेजाइनल एरिया से. या व्हेन आई वेंट टू द वॉशरूम, देयर वाज ए एक्सपल्सन ऑफ ए फ्लेशी मास फ्रॉम द वेजाइना. और वो फ्लेशी मास निकलने के बाद मेरे को थोड़ा सा हल्का लोअर एब्डोमिनल पेन है और हल्का स्लाइट ब्लीडिंग है. दैट्स इट. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, these kind of basic things usually occurs in the
complete abortion. So what are the things you understood about the complete abortion? चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में. Here product of conception. Here the product of conception is completely expelled out from the uterus. The product of conception is completely expelled out from the uterus. Now mother will provide the history of a fleshy mass. Mother will provide the history of a fleshy mass expelled from the vagina. So what is the mother history? Mother will provide the history to the doctor or the nurse that there was an expulsion of a fleshy mass. यहाँ पे फ्लेसी मास किसको बोला गया? व्हाट इज द फ्लेसी मास ओवर हियर? जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट था, जो अबोर्टस था, उसके लिए यूज किया गया द वर्ड. यूट्रस में जो भी प्रोडक्ट था, व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट इज कमिंग आउट, तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? फ्लेसी मास. बिकॉज अभी इसने पूरा बेसिकली एक ह्यूमन बींग का या एक फिटस, एक नेचुरल एक बेबी का रूप नहीं लिया था. इट इज जस्ट लाइक ए बिग मास. दैट्स व्हाई यूज द वर्ड फ्लेसी मास. सो दिस हिस्ट्री विल बी प्रोवाइडेड बाय द मदर. मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले आपको कि when the mother was taking rest, she was sleeping, she told that एक बड़ा सारा mass with a bleeding, gush of bleeding was expelled out last night. All right. What is the next history of the mother? चलिए अब हम बात करते हैं कि ब्लीडिंग कितना हैवी था, कैसा था. तो ऑन एग्जामिनेशन जब आपने मदर को एग्जामिन किया तो क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट नोट दिस वन. याद रखना इस पॉइंट के बारे में. इंटरनल ओवस इज क्लोज्ड. ओवस कैसा था? क्लोज था. स्लाइट ब्लीडिंग may or may not present. ब्लीडिंग वहां पर ऑन एग्जामिनेशन परवेदनल एरिया से ब्लीडिंग हो या नहीं भी हो सकती है, बिकॉज एंटायर गस ऑफ मास एवरीथिंग इज केम आउट. तो हो सकता है वहां पर ओवस क्लोज है तो ब्लीडिंग ना भी हो. नेक्स्ट वन, वेरी डल पेन, बहुत ही स्लाइट पेन. USG पिक्चर सजेस्ट, तो अल्ट्रासाउंड का पिक्चर क्या सजेस्ट कर रहा है आपको? द USG पिक्चर सजेस्ट absence of gestational sac. So the gestational sac is absent in the uterus. So uterus में अब कुछ भी नहीं है, and everything is expelled out. जो beads थे, जो फिटल के टिश्यूज थे, एवरीथिंग इज केम आउट. तो आपने USG पिक्चर ने ये सजेस्ट किया. तो USG करना बहुत जरूरी था. इट वाज डेफिनेटली मैंडेटरी टू परफॉर्म. मदर का हिस्ट्री था, शी वाज प्रेग्नेंट, ठीक है. अब हमें डाउट ये है, अवर डाउट इज दैट कि ये कंप्लीट अबॉर्शन है या ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन है. तो उस चीज को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, डिफरेंशिएट करोगे? विद द हेल्प ऑफ USG. तो USG में अगर गेस्टेशनल सेक बिल्कुल भी नहीं है, इट इज वैकेंट, द यूट्रस इज एब्सेंट, यूट्रस इज जस्ट नॉर्मल, देन इट इज, आप क्या सजेस्ट करोगे? इस चीज को क्या बोलोगे? यू विल से दैट इट इज ए कंप्लीट अबॉर्शन. सो व्हाट इज योर आइडिया नाउ? आप मदर को थोड़े बहुत स्लाइट हल्के पेन किलर्स दे सकते हो.
यू कैन प्रोवाइड द रेस्ट ऑफ 5 to 10 days, 10 days का मदर को रेस्ट दे सकते हो. एंड यू कैन एडवाइज द पेरेंट्स और कपल्स दैट दे शुड वेट एटलीस्ट 3 months for the conception. They should give the at least 3 months of gap for the conception. That's it. तो हमने क्या काम किया, एक प्रोसीजर हमारी तरफ से था, that is the ultrasound. We have to perform the ultrasound to confirm out that it is a complete abortion. That's it. Because अगर कोई भी प्रोडक्ट कंसेप्शन का अगर यूट्रस में रह जाता है, in upcoming future within a week it can be a septic abortion. What it will turn to septic abortion. That's it. So guys, it was a very simple point about the complete abortion. याद रखना यहाँ पे internal OS कैसा है, closed है, gestational stage यूट्रस में completely absent है, ब्लीडिंग बहुत ही मिनिमम, वेरी स्लाइट ब्लीडिंग या स्पॉटिंग्स लास्ट में देखने को मिलता है, और वेरी डल पेन. दैट्स ऑल. सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ किसके बारे में, अबाउट द कंप्लीट अबॉर्शन. All right, now we will move to the another point, very important also, incomplete abortion. Fine. So till now we have discussed regarding threatened abortion, inevitable abortion, complete abortion. Next, the fourth number, very important abortion, that is the incomplete abortion. You must remember that मैंने आपको इनिशियली शुरुआत में बताया था कि जितने भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, उनमें से सबसे मोस्ट कॉमन अबॉर्शन, मोस्ट कॉमन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कौन सा होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन. प्लीज मेंशन एज ए क्वेश्चन, इट मे आस्क इन योर अपकमिंग एग्जाम्स. सो द मोस्ट कॉमन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज द इनकम्प्लीट अबॉर्शन. ऑल राइट. एंड एक और क्वेश्चन यहां पर है, इफ यू हैव नॉट ट्रीटेड properly the incomplete abortion, it can cause septic abortion. अगर आपने incomplete abortion को properly treat नहीं किया तो ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो सकता है, it can convert into the septic abortion. Fine. चलिए अब हम बात करते हैं incomplete abortion के बारे में कि what is incomplete abortion and how it can be managed. Guys, incomplete abortion means when the product of conception, what is the product of conception? Product of conception means fetus and placenta और जो भी membranes होती हैं. When the product of conception is retained inside the uterine cavity, inside the uterine cavity, or you can also mention like this, when half of conceptual product remained inside. When the half of conceptual product remained inside, आधा प्रोडक्ट क्या हो गया, अंदर रह गया, और हाफ ऑफ द प्रोडक्ट इज केम आउट. तो हाफ प्रोडक्ट इज इनसाइड द यूट्रस, हाफ प्रोडक्ट इज केम आउट. व्हाट यू विल टेल, इट इज ए इनकम्प्लीट अबॉर्शन. तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या हुआ, द मदर हैज प्रोवाइडेड दैट लाइक लास्ट नाइट देयर वाज ए हैवी ब्लीडिंग, फ्यू ऑफ द लाइक फ्लेशी मास्क, कुछ छोटे छोटे मास्क के टुकड़े थे, दे वाज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द वेजाइना विच आई ऑब्जर्व्ड. And she is still having the pain. She is still having pain. On examination, जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया, when the doctor has performed the ultrasonography, and the doctor found that most of the placenta and placental membranes are still inside the uterus. तो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा वो अभी भी कहाँ है, अंदर है. कहाँ पर, यूट्राइन कैविटी के अंदर. आधा प्लेसेंटा डिटेच हो चुका है, हाफ प्लेसेंटा इज स्टिल अटैच्ड विद द एंडोमेट्रियम. So it is bleeding. So that kind of abortion it is called as incomplete abortion. कि abortion का process start हुआ, even expelled out होना भी शुरू हो गया बाहर, but it is not that came completely out.
सो व्हाट हैपन, इट नीड्स द क्लिनिकल इंटरवेंशन। यहां पर आप क्लिनिकल टीम की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। द मदर रियली नीड्स द सपोर्ट, शी नीड द मेडिकल एग्जामिनेशन, सो वी विल कॉल इट एज ए इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ऑलराइट गाइस, सो इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर इफ समवन आस्क यू कि ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन व्हाट यू विल फाउंड आउट ए पेशेंट विद इनकम्प्लीट अबॉर्शन, आपको कैसे पता चलेगा कि इट्स इनकम्प्लीट अबॉर्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स। सो एग्जामिनेशन के अंदर आपको पता चलेगा देयर इज ए वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग इट मे बी स्लाइट टू सीवियर, ये किसी भी नेचर का हो सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कैसा ब्लीडिंग होगा। इट मे बी स्लाइट और इट मे बी सीवियर, डिपेंड करेगा पेशेंट हॉस्पिटल में कब आ रहा है। नेक्स्ट वन, मदर इज हैविंग लोअर एब्डोमिनल पेन, 2 points, sometimes she may have fever because of the blood loss. Next one, on USG, on ultrasound examination, on USG examination, on ultrasound examination, half of conceptual products are inside, half of the conceptual products are inside the uterus. So this one you will find out in the USG. What about the FHS, fetal heart sound क्या होगा? Definitely absent. Fetal heart sound is absent. Now very important point, internal ovus, देखिए अभी प्रोडक्ट पूरा कंप्लीटली बाहर एक्सपेल्ड आउट नहीं हुआ है। इफ द प्रोडक्ट इज कंप्लीटली एक्सपेल्ड आउट तो क्या होगा? इफ द प्रोडक्ट इज कंप्लीटली एक्सपेल्ड आउट, ओवस विल बी क्लोज। तो कंप्लीट अबॉर्शन में ध्यान से सुनिए प्लीज वंस मोर, कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर इंटरनल ओवस ऑन एग्जामिनेशन कैसा फील होगा? इट विल बी ऑन एग्जामिनेशन पीवी, इट विल बी क्लोज्ड, बट इट इज नॉट कंप्लीट अबॉर्शन, इट इज इनकम्प्लीट अबॉर्शन। सो इट्स अ मैटर ऑफ लाइक importance, like internal ovus will be opened. All right, internal ovus will be opened. So threatened abortion में internal ovus कैसा था? Closed था. In inhabitable abortion में internal ovus was open. Complete abortion it was again closed. Incomplete abortion it is again opened. So open, sorry, close, open, like this. Don't forget, बस एक चीज याद रखिए, जब प्रोडक्ट अंदर है यूट्रस के अभी एंड प्रोडक्ट इज डेड, इट इज अबाउट टू कम आउट, विल बी ओपन। जब प्रोडक्ट पूरा बाहर आ चुका है, एवरीथिंग इज वॉश्ड आउट, यूट्राइन कैविटी इज नाउ वैकेंट, द प्रोडक्ट, द ऑब्वियसली द प्रेगनेंसी के बारे में अभी कुछ भी नहीं है वहां पर, व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली ओवस विल बी क्लोज्ड, दैट्स ऑल। सो दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर यू विल फाइंड आउट इन द इनकम्प्लीट अबॉर्शन। नाउ व्हाट विल बी आवर इंटरवेंशन? ये आपने एग्जामिन किया, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या रहेगा यहां पर? सो मैनेजमेंट ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन, व्हाट यू हैव टू डू? यू कैन अप्लाई टेबलेट मिसोप्रोस्टोल, सेम वही 200 mg माइक्रोग्राम, मैक्सिमम कितने डोज? 4 डोजेस पर वेजाइना। मिसोप्रोस्टोल सपोजिटरी पर वेजाइना 200 microgram, 4 tablets maximum. Sometime when there is a heavy vaginal bleeding, we can also give the oral misoprostol, but you have to make sure to the mother that if you take oral misoprostol, it will be less effective. All right. So because when the female is having bleeding, she will be like very discomfortable to apply the misoprostol suppositories. So she may plan for the oral tablets. She can take oral misoprostol, not a big deal. Next point. So misoprostol के अलावा here again you can go for like
dilatation and evacuation procedure. Before 12 weeks of pregnancy. Next one, after 12 weeks, 12 weeks के बाद में आप क्या कर सकते हो? You may prefer to go for dilatation and curettage, DNC. You can go for the dilatation and curettage. All right. So dilatation and curettage can be performed when it is after 12 weeks. So guys, हमारे पास options available हैं. We can go for misoprostol suppositories. We can go for dilatation and evacuation before 12 weeks. After 12 weeks, you can go for DNC. That is a dilatation and curettage. All right. Next one. इनके अलावा next we have to administer the antibiotics. Definitely the mother needs the antibiotic because there's a little bit chances of septic abortion. So to prevent the chances of septic abortion, you need to administer the antibiotics. Fine. And bed rest. That's all. That's all about the management of incomplete abortion. So we have studied about incomplete abortion. We have gone through the point like in incomplete abortion, there will be half of the product will be retained inside the uterus, either placenta, placental tissues or membranes, and you will find out that fetus is definitely absent. Still the mother is having bleeding. Mother को अभी bleeding हो रहा है. Internal ovus अभी open है. Two important points. And mother, to prevent the bleeding, we may need to stop the bleeding. We need to expel out this product now. So आपको mother को admit भी करना पड़ सकता है. You need to go for the dilatation and evacuation before 12 week. If the period is extended up to like after 12 week, तो आपको क्या करना होगा 12 week के बाद में? 12 week के बाद में you can go for DNC, dilatation and curettage, completely to evacuate the product. Sometime when the conceptual product is size small, when the endometrial thickness is less than 15 mm, जब एंडोमेट्रियम का थिकनेस 15 mm से कम है, कितने mm से कम? 15 mm से कम है, लेस देन 15 mm, यू विल बी प्रिफर्ड टू गो फॉर दी मिजोप्रोस्टोल सपोसिटरी. किस पे जाओगे आप? मिजोप्रोस्टोल सपोसिटरी पे जाओगे. प्लीज नोट डाउन दिस वन. व्हेन द एंडोमेट्रियल थिकनेस इज लेस देन 15 mm, इट मीन्स द प्रोडक्ट इज डेफिनेटली वेरी स्मॉल इन द नेचर. आप टेबलेट से भी उसको एक्सपेल्ड आउट कर सकते हो. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, डायलेटेशन एंड क्यूरेट इज रियली हार्मफुल. इट इज फ्यूचर के अंदर मदर के लिए ये डेंजरस होता है. इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं. सो बेटर टू गो फॉर द फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट. टेबलेट से मैनेजमेंट करना ज्यादा सही रहेगा. प्लस मदर का सीबीसी, हीमोग्लोबिन लेवल वगैरह चेक करना एंड एडमिनिस्ट्रिंग द एंटीबायोटिक्स. आप एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हो? टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ सेप्सिस. दैट्स ऑल. तो गाइज, ये था हमारा पॉइंट इनकम्प्लीट अबॉर्शन. In the antibiotic, what you will administer here? As the antibiotic, you will be preferred for the cephalosporins, like which will not be highly harmful for the mother in even future. Cephalosporins, you will be mainly preferred the cefaxime. If you go for IV antibiotic, you can go for cefotaxime. That's all. Now let's discuss regarding the septic abortion, the another type of abortion and very dangerous abortion also, I can say, septic abortion.